ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ اپنے ناخن اس کے بازو پر مارتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ ظالم شخص تو اسے چھوڑنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ اس نے اس کی آواز خاموش کروانے کے لیے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا اور اس پر جھک گیا۔ اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا اور وہ مسلسل ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ پھر ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ فوراً سے اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھایا اور فٹافٹ پانی اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے قریب لیٹے وجود پر ایک نظر ڈالی جو کہ گہری نیند میں تھا، اور پھر بے اختیار اپنا سر بیڈ کے کراؤن سے ٹکا لیا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ایک بار پھر سے سونے کی کوشش کی، لیکن اس کے سامنے اسی انسان کا چہرہ آ گیا جس سے وہ دور بھاگنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، گھٹنوں میں سر دیے وہ رونے لگ گئی۔ اسی وقت اس کی سسکیوں سے اس کے برابر میں لیٹے وجود کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سائڈ لیمپ جلایا اور شانزے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ کیا پھر سے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا؟ وہ اس کا سر سہلاتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پرواہ اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ بے اختیار شانزے اسے دیکھنے لگی۔ اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو ابھی ان دونوں کی زندگی بہت اچھی ہوتی اور وہ بہت ہی خوشی خوشی اس کے ساتھ اپنی زندگی جی رہی ہوتی، لیکن اس ایک رات نے اس کی ساری خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی۔ اس نے اپنا سر سارم کی گود میں رکھ لیا اور تھوڑی ہی دیر بعد نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ اس کے سو جانے کے بعد سارم نے تکیا اس کے سر کے نیچے رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سوچنے لگا کہ آخر اسے ایسے خواب کیوں نظر آتے ہیں۔ کئی بار وہ اسے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، لیکن شانزے ہمیشہ انکار کر دیتی۔ وہ اسے کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پوری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھا تو اس نے حویلی میں کال کی اور بی بی جان سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے شانزے کے ساتھ حویلی میں رہنے آ رہا ہوں، آپ ہم دونوں کا کمرہ تیار کر دینا۔ بی بی جان نے صبح سویرے سارم کی کال دیکھی تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ تو اسے ہمیشہ سے کہتی تھی کہ تم شہر چھوڑ کر گاؤں واپس آ جاؤ، لیکن سارم شانزے کی وجہ سے وہاں نہیں جاتا تھا، کیونکہ شانزے نے کہا تھا کہ وہ شہر میں رہے گی، گاؤں میں وہ نہیں رہ پائے گی۔ حالانکہ وہ ساری زندگی گاؤں میں ہی رہی تھی۔ وہ اس کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ بچپن سے سارم اسے پسند کرتا تھا اور دونوں کی مرضی سے ہی ان کی شادی طے ہوئی تھی، لیکن شادی کے بعد سے ہی شانزے کا رویہ اکثر تبدیل ہو جاتا تھا۔ کبھی وہ رات کو نیند سے اچانک سے جاگ جاتی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی بھیانک خواب دیکھتی تھی۔ سارم کو آج تک اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے، بس وہ اس خواب کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی اور اکیلے گھر میں رہنے سے ڈرتی تھی۔ سارم جب آفس جاتا تو وہ پیچھے سے بار بار سارم کو فون کر کے کہتی کہ واپس آ جاؤ۔ ان کی شادی کو ابھی صرف 3 مہینے کا عرصہ گزرا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شانزے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر 1 سال، 2 سال اور 3 سال ہو گئے، شانزے کا رویہ بالکل تبدیل نہیں ہوا۔ کئی بار وہ اسے حویلی لے جانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شانزے ہمیشہ منع کر دیتی۔ نہ جانے حویلی میں ایسا کیا تھا جو شانزے وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، حالانکہ وہ اسی حویلی میں کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ ہمیشہ حویلی میں سے ہی کوئی نہ کوئی اس سے ملنے آتا رہتا، تب بھی وہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھے۔ سارم نے کئی بار اس سے پوچھا بھی، کیا تم ہماری شادی سے خوش نہیں ہو؟
तो उसने फौरन से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है, तुम इस बात से वाकिफ हो। बस मैं उन ख्वाबों की वजह से परेशान हूँ। ये कहकर वो बात को टाल देती, लेकिन अब सारिम ने सोच लिया था कि वो उसे किसी न किसी तरह हवेली लेकर ही जाएगा। और अब जब उसने शांजे को कहा कि हमें हवेली जाना है, तो शांजे ने हमेशा की तरह साफ मना कर दिया, मगर इसने बहाना बनाया और कहा कि बीजान की तबीयत ठीक नहीं, बीबी जान हम दोनों को बुला रही हैं। बीबी जान की तबीयत की खराबी का सुनकर शांजे फौरन से परेशान हो गई और कहने लगी, आखिर ऐसा क्या हुआ? अचानक से उनकी तबीयत क्यों खराब हो गई? वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो दोनों बचपन से ही बीबी जान के बहुत करीब थे और सारिम जानता था कि शांजे जब भी उनकी तबीयत के बारे में सुनेगी तो फौरन से हवेली जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और यही हुआ। वो फौरन से अपनी जगह से उठी और अपना और सारिम का सामान पैक करने लगी। वो दोनों उसी वक्त हवेली के लिए निकल गए। हवेली पहुंचने में उन्हें 3 घंटे का वक्त लग जाना था। सारिम ने सोचा था कि गांव की खुली फिजा में जाकर शांजे खुद ही ठीक हो जाएगी और उसकी तबीयत पर अच्छा असर होगा। यूं उन दोनों की जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। सारिम अब एक बच्चा चाहता था, लेकिन शांजे की ऐसी हालत की वजह से उसने अब तक इस बात का जिक्र शांजे से नहीं किया था। पता नहीं वो किस दुनिया में गुम रहती थी, हमेशा खोई खोई सी रहती। वो दोनों जैसे ही गांव की हुदूद में दाखिल हुए तो शांजे बाहर झांक कर देखने लगी। लहलहाते खेतों को देखकर उसे शादी से पहले का वक्त याद आ गया, जब वो अपनी दोस्तों के साथ यहाँ पर खूब घूमा करती थी। लेकिन उसके चेहरे पर साथ ही साथ एक उदासी की लहर भी आ गई। उसे वो वाकया एक बार फिर से याद आ गया। सारिम उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत गौर से देख रहा था। वो हकीकत जानना चाहता था और शांजे उसे हकीकत बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि हकीकत इतनी कड़वी थी कि अगर पता चल जाता तो रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती। इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखने में ही भलाई जानी। हवेली के बाहर पहुंचे तो सब लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। बीबी जान सबसे आगे थी। सारिम तो फिर भी उनसे मिलने के लिए आ जाता था, लेकिन शांजे तो बहुत लंबे अरसे के बाद यहाँ आ रही थी। वो सब उसे देखने के लिए बहुत बेताब थे। जैसे ही शांजे नीचे उतरी और उसने हवेली के अंदर कदम रखा तो वो सारा मंजर उसकी निगाहों के सामने घूम गया। बेसाख्ता ही उसने अपनी आंखें तकलीफ से मींच ली। बीबी जान उसे गले लगाए खड़ी थी, लेकिन शांजे के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सब बारी बारी उससे मिलते और शिकवा करते कि तुम शादी के बाद हमें भूल ही गई, जैसे हम तो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं हैं। इसी घर में पैदा हुई और पल ही बढ़ी, लेकिन शादी के बाद यहाँ का एक बार भी रुख नहीं किया। अब अपना चेहरा दिखा रही हो। उसकी बहुत सी कज़न जो उसका इंतज़ार करती रहती थी उसे साथ लिए मरकज़ी हॉल में आ गई। सारे ख़ानदान वाले जब भी मिलकर बैठकर बात करते थे तो इसी हॉल में बैठते थे। अब भी यहाँ पर सब बैठे उन दोनों से शिकवे शिकायत कर रहे थे। बीबी जान ने दोनों के लिए खुसूसी तौर पर चाय और उसके साथ लवाजमात बनवाए थे और रात का खाना भी तैयार करवाया था। उन्हें पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। सब उन्हें घेरे बैठे थे। तभी बीबी जान ने कहा कि अरे कब तक इन्हें तंग करते रहोगे? बेचारे बच्चे थके हारे आए हैं, उन्हें फ्रेश होने दो। चलो सारिम, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम लोगों का कमरा तैयार है और पानी गर्म कर दिया है। सर्दियों का मौसम हो रहा था और ठंड की वजह से ठंडे पानी से नहाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए बीबी जान ने उनके लिए पानी भी गर्म करवा दिया था। वैसे तो हवेली में हीटर लगा हुआ था, लेकिन इस वक्त तकनीकी खराबी की वजह से काम नहीं कर रहा था। सारिम ने शांजे की तरफ देखा और उसे उठकर अंदर आने को कहा। वो भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। वो तो जिस्मानी और जहनी दोनों तौर पर थकी हुई थी। नहा धोकर वो कमरे में ही बैठ गई। हालांकि सारिम ने उससे कहा कि आओ बाहर सब बैठकर बातें करो, सब तुम्हारा इतना इंतज़ार करते हैं। वो लोग अजनबी तो नहीं हैं, तुम बचपन से इन सबको जानती हो, तो इस तरह का रवैया क्यों रख रही हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता।
सारिम के कहने पर शांजे खामोशी से उसके साथ बाहर आ गई। अपनी कजन्स के साथ बैठकर बातें करती वो काफ़ी उदास लग रही थी। सबने उसकी उदासी को नोट किया था, लेकिन किसी के अंदर सवाल करने की जुर्रत ना हुई, क्योंकि बीबी जान ने सख्ती से मना किया था कि कोई भी शांजे से उल्टे सीधे सवाल नहीं करेगा। वो नहीं जानती थी कि शांजे के साथ क्या मसला है, लेकिन वो उसे परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। शांजे की नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उस एक शख्स से उसका सामना हो, लेकिन उसे थोड़ा सा तजस्सुस भी हो रहा था कि आखिर वो है कहाँ। वो उसके आने से पहले पहले अपने कमरे में चली जाना चाहती थी। उसका चेहरा देखने की हिम्मत इसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। वो जानती थी कि अगर इसने उसका चेहरा देखा तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी और वो राज खोल जाएगा जिसे संभालते वो सालों से बेहाल हो रही थी, और उसका गंदा चेहरा भी सब लोगों के सामने आ जाएगा। उसी वक्त सारिम ने उसका जिक्र बीबी जान के सामने किया। शांजे के रोंगटे खड़े हो गए और उसके चेहरे की हालत गैर होने लगी। बीबी जान ने यह मंजर बहुत गौर से देखा। शांजे के बदलते चेहरे को देखकर उन्हें कुछ न कुछ शक हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ख़ास तौर पर उसका जिक्र दोबारा से किया। शांजे उठकर वहाँ से फ़ौरन ऊपर कमरे में चली गई। बीबी जान ने सारिम से कहा कि तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे शहर गया हुआ है। तकरीबन अगले हफ्ते तक तो नहीं आ सकेगा, बिजनेस के सिलसिले में ही गया है। इतना कहकर वो खामोश हो गई। वो मुसलसल सोच रही थी कि उसका जिक्र सुनकर शांजे के चेहरे की हालत क्यों ख़राब हो गई थी। आखिर क्या हुआ था? रात को जब खाना लगा तो उन्होंने शांजे की तरफ देखा। वो अब भी परेशान नजर आ रही थी। रात को जब खाने के बाद सब लोग अपने कमरों में चले गए तो उन्होंने शांजे को अपने पास बुलाया। यूं अचानक बुलावे पर वो परेशान हो गई, लेकिन फिर सारिम के साथ बीबी जान के कमरे में आ गई। बीबी जान ने सारिम से कहा कि तुम जाओ, मुझे सिर्फ शांजे से बात करनी है। मेरी बच्ची इतने अरसे बाद आई है तो मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। सारिम वहाँ से बाहर आकर अपने कज़न्स के पास बैठ गया और उनके साथ बातचीत करने लगा। दूसरी तरफ शांजे बीबी जान के पास आकर बैठी तो उन्होंने इससे कहा कि कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। ये सुनकर शांजे परेशान हो गई, लेकिन बीबी जान के हुक्म के मुताबिक उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बीबी जान के पास बैठी तो उन्होंने कहा, शांजे क्या बात है? कोई तो ऐसी बात है जो तुम हम सब से छुपा रही हो। कितने साल हो गए हैं तुम यूं परेशान परेशान हो। क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। आज मैंने नोट किया कि असगर का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग फौरन से बदल गया। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी और सारिम की शादी तो तुम दोनों की मर्जी से हुई थी और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि तुमने सारिम में दिलचस्पी लेना ही छोड़ दी? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। शांजे ने उनकी बात सुनी तो बेसाख्ता रोने लग गई। असगर का नाम सुनते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बीबी जान ने जब उसे यूं रोते देखा तो परेशान हो गई और कहने लगी, बेटी रो मत, मुझे बताओ। जब तक तुम बताओगी नहीं तो मसले का हल नहीं निकलेगा। यूं अपने दिल में बात रखोगी तो हर वक्त तकलीफ में मुब्तला रहोगी। कई साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को। तुमने कभी सोचा है कि सारिम कितनी मुश्किल से तुम्हारे साथ रह रहा है? वो तुम्हारे रवैये को समझ नहीं पाता। कई बार मेरे सामने रो पड़ा है कि वो तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। वो समझता है कि वो तुम्हें खुशी नहीं दे पा रहा। वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर नहीं आती। इसकी वजह क्या है? 2 महीने पहले वो मेरे पास आया था और उसने कहा कि बीबी जान, मैं अब बच्चा चाहता हूँ, लेकिन मैं शांजे से ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखता। वो हमेशा कहीं खोई खोई रहती है। शायद वो मेरे साथ बिल्कुल खुश नहीं। हमने शादी करके शायद गलत फैसला लिया है। जब मैं उससे पूछता हूँ तो वो कहती है कि मेरे साथ बहुत खुश है, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आती। बीबी जान के मुंह से ये बात सुनकर शांजे ने झटके से सर उठाकर उनकी तरफ देखा। शादी के बाद से अब तक तो उसने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था।
اس کے دماغ میں تو ہر وقت ایک ہی رات چلتی رہتی تھی جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور بدل گیا تھا، اور جس نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا تھا اس کے علاوہ تو اس نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اس رات سے کبھی باہر ہی نہ نکل پائی۔ لیکن اب بی بی جان نے جب اسے سارم کی خواہش کے بارے میں بتایا تو اسے احساس ہوا کہ شادی سے سارم کی بہت سی توقعات جڑی ہوئی ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک پر بھی پورا نہیں اتر پا رہی۔ شادی سے پہلے جو کچھ اس نے سوچا تھا اور جو خواب دیکھے تھے وہ سب بھول چکی ہے۔ سارم اسے خوش رکھنے کی کتنی کوشش کرتا تھا لیکن وہ اپنے ماضی کو ہی نہیں بھول پا رہی تھی۔ لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سب بھلانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ شاید زندگی بھر کا اس کا یہ زخم ایسا ہی رہے گا۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگی۔ بی بی جان فوراً سے پریشان ہو گئی اور اسے پانی پلایا اور کہا کہ بیٹی جلدی بتاؤ کیا بات ہے، تبھی کوئی حل نکل سکے گا۔ اگر تم مجھ سے بتاؤ گی نہیں تو میں کیسے سمجھ پاؤں گی؟ بی بی جان کے کہنے پر اس نے ایک فیصلہ کیا اور سوچا کہ میں انہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ اتنے عرصے سے وہ خود ہی اس تکلیف کو سہے جا رہی تھی، اب اور بھار نہیں اٹھا سکتی تھی، اور پھر اس نے دھیرے دھیرے بی بی جان کو سب کچھ بتا دیا۔ جیسے جیسے وہ بتاتی جا رہی تھی بی بی جان کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حقیقت اتنی بھیانک ہوگی۔ وہ بیچاری اتنے عرصے سے یہ تکلیف اکیلے سہ رہی تھی۔ جو کچھ اس کے اوپر گزری تھی وہ بالکل ناقابل قبول تھا، اور کرنے والے کے بارے میں جب بی بی جان کو پتہ چلا تو ان کا دل چھلنی ہو کر رہ گیا۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے۔ انہوں نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹی اس بات کا ذکر کسی کے سامنے مت کرنا، خاص طور پر سارم کے سامنے۔ اگر حقیقت اسے پتہ چلی تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گا۔ اسے لگے گا کہ وہ خود قصوروار ہے، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں۔ اس کے باوجود وہ خود کو قصوروار مانے گا۔ تمہارا رشتہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ اس کے دل میں جو تکلیف پیدا ہو جائے گی پھر وہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ اسے اس درد سے مت گزارنا۔ جب تک یہاں پر ہو اس تکلیف کو بھلانے کی کوشش کرو، اور پریشان مت ہو، وہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ 1-2 ہفتوں تک تو اس کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسے میں نے بتایا ہی نہیں کہ سارم لوگ یہاں پر آئے ہیں، نہ ہی وہ یہ سب جاننے کا حق رکھتا ہے۔ تم خوشی خوشی یہاں پر رہو اور اس سب کو بھلا دو، اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور سارم کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے، تمہاری اور سارم کی زندگی پر اس کا بہت اثر ہو رہا ہے۔ تو سوچو اگر سارم کو یہ بات پتہ چل گئی تو تب کیا ہوگا؟ انہوں نے شانزے کو ہر طرح سے سمجھایا، پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ شانزے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ایک دفعہ سارم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوتے ہوئے بہت ہی معصوم لگ رہا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے بعد سے لے کر اب تک اس نے ہر لمحہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن شانزے خود اسے کوئی خوشی نہیں دے پائی۔ شانزے کو اپنے اوپر اب شدید غصہ آیا۔ اکثر ہی جب وہ ایسے خواب دیکھتی تھی تو وہ سارم کو صوفے پر سلا دیتی اور خود بستر پر اکیلے سوتی۔ نہ جانے وہ خود کو اسے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی، اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی تھی۔ بی بی جان نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے جو کچھ کہا تھا وہ اس کے دماغ میں مسلسل گھومے جا رہا تھا۔ سارم کا اس قصے میں کوئی قصور نہیں تھا تو وہ بے وجہ اسے سزا کیوں دے رہی تھی؟ وہ خود سے مسلسل سوال کر رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے سارم کو اٹھایا۔ سارم پریشان ہو گیا کہ رات کو وہ کیوں اٹھا رہی ہے، کہیں دوبارہ سے اسے بھیانک خواب تو نہیں آیا۔ لیکن پھر اس نے دیکھا شانزے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ شادی کے بعد اتنے عرصے بعد اس نے پہلی بار شانزے کو مسکراتے دیکھا تھا، بالکل ویسی مسکراہٹ جیسی وہ شادی سے پہلے مسکراتی تھی۔ شانزے کو یوں مسکراتے دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا اور کہنے لگا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہاں آ کر تمہارا موڈ خود ٹھیک ہو جائے گا۔
वैसे भी जान तुमसे क्या बातें कर रही थी जो मुझे भी कमरे से बाहर भेज दिया? ऐसी कौन सी खुफिया बातें हैं तुम दोनों की? वो मुस्कुराते हुए उससे पूछ रहा था। शांजे ने उससे कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मुझसे शिकवे कर रही थी कि तुम यहाँ पर आती क्यों नहीं हो। सारिम ने उसे अपने साथ लिटाया और उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। शांजे और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते करते कब सो गए उन्हें पता ही ना चला। जब सारिम की आंख खुली तो देखा वो गहरी नींद में सो रही थी। वो इसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसके माथे पर बोसा देकर उठकर फ्रेश होने चला गया। शांजे जब उठी तो देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। बीबी जान ने नाश्ता तैयार करवा लिया था और उसे उठा रही थी। शांजे उठी तो देखा सारिम कमरे में नहीं था और बीबी जान उसके पास बैठी थी। उसे उठते देखते ही कहने लगी, आज तो सारिम के चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। शुक्र है कि तुमने मेरी बात मानी और सही फैसला किया। चलो अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो और नाश्ते के लिए आ जाओ। तुम्हारी पसंद का नाश्ता तैयार करवाया है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चली गई। शांजे वॉशरूम में आई और फ्रेश होकर नीचे चली आई। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो इतनी देर तक सोती रही, लेकिन उसकी मामी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें शायद आदत हो गई है देर तक सोने रहने की। यहाँ पर होती थी तो सुबह सुबह उठ जाती थी और पूरे गांव में घूमती रहती थी। फिर से पुरानी बातें चल निकली थी, लेकिन उस वक्त शांजे के चेहरे पर एक अलग खुशी थी जिसे देखकर सारिम बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश शांजे को खुश देखना थी और अब वो पूरी हो रही थी। बीबी जान भी शुक्र का सांस ले रही थी कि दोनों के बीच का रिश्ता ठीक हो गया है। लेकिन रात को जो कुछ शांजे ने उन्हें बताया था, उस हकीकत ने अब बीबी जान को अपने हिसार में ले लिया था। वो एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जिसे सुनकर बीबी जान को लगा कि उनका दिल 2 अलग टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। वो शांजे की तकलीफ को अच्छे से समझ पा रही थी। उसकी तकलीफ का अंदाज़ा उन्हें बहुत अच्छे से हो रहा था। शांजे से वो बोझ उन्होंने खुद लेकर अपने कांधों और अपने दिल पर डाल लिया था। अब वो दिन रात उसी एक बात को सोचकर परेशान होती रहती। उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी। शांजे अच्छे से जानती थी कि उसकी वजह क्या है। उसने बीबी जान से कहा भी कि इस बात को भूल जाएं। मैंने इतना अरसा इसीलिए किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी कि उसके बाद यही सब होगा। जो कुछ मैं सह रही हूँ वो सब कोई और सहे, मैं नहीं चाहती थी। इस बात को यहीं दफन कर देना चाहिए। लेकिन वो ऐसी हकीकत थी जिससे बीबी जान नजरें नहीं चुरा सकती थी। शांजे ने तो उन्हें बता दिया था, लेकिन बीबी जान इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर सकती थी। वो इस घर की सबसे बड़ी थी और हर मामले को बहुत अच्छे से संभालती थी। बहुत से राज उनके सीने में दफन थे और इस राज को भी उन्होंने अपने सीने में कहीं दफन कर लिया था, लेकिन वो उन्हें तकलीफ जरूर देता था। सालों से उन्होंने इस घर को संभाला था। इस घर की सरबराह होने के साथ साथ वो अपने बच्चों के लिए बाप भी थी। उनके शौहर की वफात बहुत अरसा पहले हो गई थी। उस वक्त उनके सारे बच्चे छोटे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। उन्हें संभालने की जिम्मेदारी इनके नाजुक कंधों पर आ गई थी। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था। बहुत से लोग जायदाद के लालच में आ गए और इनसे जायदाद ईंटने की कोशिश की। ये सब संभालते संभालते बी जान की हालत खराब होती गई। खेतों में काम कर कर के उन्होंने अपने बच्चों को पाला, इस हवेली को बचाया और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की। गांव में उनका एक नाम था, हर कोई उनकी इज्जत करता था और हर मसले में उनसे मशवरा लेता था। उन्होंने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि बेटियों को भी पढ़ने के लिए शहर भेजा था। हालांकि गांव में कोई भी अपनी बेटियों को पढ़ाता नहीं था, लेकिन बी जान ने सबसे पहले ये कदम उठाया। वो समझ गई थी कि लड़कियों के लिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है और ये तजर्बा उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हासिल किया था। बाद में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करीब के ही गांव में की थी, जहां वो सुखी ज़िंदगी जी रही थी।
उनके बेटों ने बड़े होकर अपनी माँ का कारोबार में हाथ बटाया और उस कारोबार को काफ़ी ज़्यादा फैला दिया। बहुएं भी उनकी बहुत अच्छी थी, जो उनकी इज्जत करती थी। उन्हें अपनी सारी औलादें और अपने पोते पोतियाँ और नवासे नवासों से बहुत प्यार था, ख़ास तौर पर सारिम और शानजे, जिन्हें उन्होंने खुद पाला था। शानजे का एक ही भाई था जो पढ़ने के लिए बाहर मुल्क गया हुआ था और वहीं पर उसने शादी कर ली थी। पहले भी जान नाराज़ हुई, लेकिन फिर बाद में मान गई। वो कभी कभी हवेली आता रहता था, लेकिन बाहर ही सेटल था। सारिम लोग 3 भाई थे। सारिम सबसे छोटा था। शानजे और सारिम के बीच बचपन से बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि दोनों की मंगनी कर दें, लेकिन बीजान बचपन की मंगनियों के हक में नहीं थी और कहा कि बड़े होकर अगर इनकी मर्जी हुई तो हम इनकी शादी कर देंगे, वरना इस तरह ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाना ठीक नहीं है। और बड़े होकर इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब दोनों से इनकी मर्जी पूछी गई तो वो दोनों इस शादी पर मुकम्मल तौर पर राज़ी थे। बीजान ने दोनों की मंगनी तय कर दी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़बानी कलामी बात तय की गई। इरादा था कि जब दोनों की तालीम मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद दोनों की मंगनी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। दोनों शहर में साथ में पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी में भी लड़के लड़कियों का हॉस्टल था, वहीं पर रहते थे। यूनिवर्सिटी में सारिम को बहुत सी लड़कियां पसंद करती थीं और उससे दोस्ती करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन हर कोई जानता था कि सारिम और शानजे आपस में इंगेज्ड हैं और सारिम वैसे भी किसी को मुंह नहीं लगाता था। वो हमेशा शानजे के साथ रहता और उसकी परछाई बनकर उसका साथ देता और उसका ध्यान रखता। शानजे काफ़ी जिंदा दिल लड़की थी। उसने यूनिवर्सिटी में भी अपनी बहुत सी दोस्तें बना ली थी, जिससे भी मिलती फ़ौरन से अपनी दोस्त बना लेती। गांव में भी उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी। अक्सर ही नहर किनारे उनके साथ जाकर बैठ जाती और कच्चे आम तोड़ तोड़ कर खाती। बीजान अक्सर उस पर गुस्सा करती थी कि यूं कच्चे आम मत खाया करो, दांत खराब होंगे, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती थी। जब भी गांव आती तो वो और सारिम बहुत सी किताबें लेकर साथ आते थे। दोनों को ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हवेली के एक कमरे में उन दोनों ने एक कुतुब खाना बना रखा था। वापस आकर हमेशा उसी कुतुब खाने में मौजूद रहते, जिस पर बीजान उन्हें बहुत डांटती और कहती कि कुछ दिन के लिए आते हो और सबके साथ बैठकर बातचीत भी नहीं करते, कुतुब खाने में ही मगन रहते हो, इतना भी क्या पढ़ना। लेकिन वो बीजान को क्या बताते कि हम कोर्स की किताबें नहीं बल्कि कहानियाँ पढ़ते हैं। जब बीजान उन्हें डांटती तो वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखकर आंख मार देते। हालांकि उनके बाकी कज़न वगैरह सब जानते थे कि ये दोनों क्या करते हैं। सारिम शानजे से 2 साल आगे था। जब सारिम की तालीम मुकम्मल हो गई तो बीबी जान ने उससे कहा कि तुम शहर में ही कोई नौकरी करो जब तक शानजे की तालीम मुकम्मल ना हो जाए। वो चाहती थी कि वो शानजे के साथ रहे और उसका ध्यान रखे, क्योंकि शानजे थोड़ी लापरवाह सी लड़की थी और शहर में किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। इसीलिए बीजान बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी। सारिम ने उनकी बात मान ली और शहर में ही एक जॉब ढूंढकर वहीं रहने लगा। शानजे को घूमना फिरना और शॉपिंग करना बहुत पसंद था और जब भी उसे घूमना होता वो फ़ौरन से सारिम को कॉल करती और उससे कहती कि मुझे शहर घुमाओ। उसकी वार्डन मगरिब के बाद बाहर नहीं जाने देती थी, इसीलिए वो दीवार फलांग कर बाहर निकल जाती। दोनों खूब इंजॉय करते। वहाँ का कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं था जहाँ पर वो सारिम के साथ ना गई हो। खाने पीने की हद से ज़्यादा शौकीन थी। पूरा महीना बहुत शॉपिंग करती और उसके बाद जब हवेली आती तो सबको एक एक चीज़ दिखाती। बीजान उसे कहती कि तुम कितनी फजूल खर्च हो, हमेशा पैसे खर्च करती रहती हो, शादी के बाद तुम गुजारा कैसे करोगी, मेरे बच्चे की जेब तो खाली कर दोगी। बीबी जान की बात सुनकर वो बेसाख्ता हंस पड़ती थी। उन्हीं दिनों हवेली में एक शादी की तकरीब हुई, सारिम के बड़े भाई असगर की शादी की तकरीब। वो खूब दिल लगाकर तैयार हुई। उसे शादी वगैरह के फंक्शन बहुत ज़्यादा पसंद थे। असगर काफ़ी अलग किस्म का लड़का था, हमेशा खामोश रहता और अपने काम से काम रखता।
शांजे को तो उससे डर भी लगता था, क्योंकि वो बहुत संजीदा था, हमेशा गुस्से से बात करता। जब उसे पता चला कि असगर भाई की शादी तय हो गई है, तो वो ये सोच सोच कर परेशान होती कि उनकी बीवी इनके साथ कैसे गुजारा करेगी। वो तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, बेचारी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो ये सब मजाक में कहती थी, लेकिन जब असगर ये सुनता तो गुस्सा हो जाता। उनके यहाँ जब भी शादी होती थी तो बहुत बड़े पैमाने पर होती थी और कई कई दिन तक जारी रहती थी। असगर की शादी भी बहुत दिन तक होती रही। शादी के हर फंक्शन में उसने अलग कपड़े और अलग ज्वेलरी पहनी। हर फंक्शन में वो बहुत खूबसूरत और नुमायां नजर आ रही थी। ऐसे में उसे पता नहीं था कि किसी की गलीज नजरें उसके ऊपर हैं और उसका खास जायजा ले रही हैं। वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ थी, पूरी तरह से शादी के फंक्शन में मगन थी। अपने दोस्तों के साथ तस्वीर बनवाती और खूब हल्ला गुल्ला करती। कई बार सारिम उसे छेड़ता। बहुत सी चीजें उसने सारिम की पसंद से भी ली थी। जल्द ही उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, इसीलिए वो दोनों काफी ज्यादा हॉट टॉपिक थे। हर कोई उनका रिकॉर्ड लगाता और वो सारिम से काफी ज्यादा शर्माई शर्माई रहती। जहां भी उसे देखती फौरन से वहां से भाग जाती। जिस दिन मेहंदी थी उस दिन वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी अम्मा ने इससे कहा कि मैं फूल तो ऊपर कमरे में भूल आई हूं, तुम जल्दी से फूलों की टोकरी ले आओ, फंक्शन शुरू ही होने वाला है। वो भागती हुई नंगे पांव ऊपर आ गई। सैंडल उसने नीचे उतार दिए थे ताकि सीढ़ियां चढ़ने में किसी किस्म का मसला ना हो। वैसे भी उसे सैंडल पहनने की आदत नहीं थी, लेकिन उसने जानबूझकर सैंडल लिए थे क्योंकि उसे बहुत पसंद थे। वो ऊपर आई तो फौरन से उसे किसी ने अपनी तरफ खींचा। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन अपने सामने सारिम को खड़े देखा तो शर्माकर सर झुका लिया। सारिम ने उससे कहा कि अब तुम मेरे सामने आती ही नहीं हो, आखिर ऐसी भी क्या बात है? कुछ ज्यादा शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वैसे तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, चलो हम भी आज ही शादी कर लेते हैं, कहो तो बीजान से बात करूं? इसने फौरन से सारिम को मुक्का मारा। वो दोनों वहां बातें करने में मगन थे कि उसी वक्त असगर वहां से गुजरा। एक अजीब सी नजर उसने इन दोनों पर डाली। वो दोनों फौरन से साइड पर हो गए। शांजे को बहुत अजीब लग रहा था। अगर असगर की जगह किसी और ने देखा होता तो वो शर्मा जाती, लेकिन असगर की निगाहें इतनी अजीब थीं कि वो अपनी जगह गड़ कर रह गई। उसे लग रहा था कि न जाने उसने क्या कर दिया है। फिर बाकी के सारे फंक्शन में वो सारिम से दूर रही, लेकिन उसे महसूस होता रहा कि असगर बार बार उसे अजीब नज़रों से देख रहा है। वो उसकी नज़रों से छुपने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उसमें कामयाब ना हुई। उसे इसकी नज़रों का मफहूम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वो सारिम के साथ खड़ी बात कर रही थी तो असगर भाई ने कुछ गलत समझ लिया है, इसीलिए बार बार उसे ऐसे देख रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गई। उसकी कज़न ने जब उसे परेशान देखा तो उसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, तुम आज खुश नज़र नहीं आ रही? तुम्हें तो ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम ही तो इनमें रौनक होती हो। आखिर क्या बात है, तुम यूं चुप चुप क्यों हो? अपनी कज़न की बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से एक जगह जाकर बैठ गई। और फिर बाकी के पूरे फंक्शन में वो किसी भी चीज़ में शामिल ना हुई। असगर की शादी हो गई और वो दोबारा से हॉस्टल पढ़ने के लिए चली गई। बस ये आखिरी महीना था, उसके पेपर हो जाने थे। उसके बाद भी जान का इरादा था कि कुछ अरसे बाद इन दोनों की शादी भी कर दी जाए। उसे पेपर से फ्री होकर जब वो गांव आई तो सारा वक्त अपनी दोस्तों या अपनी कज़न्स के साथ गांव में घूमती फिरती रहती। उसकी अम्मी उसे कई बार कह चुकी थी कि घर में रहकर काम काज सीख लो, लेकिन वो मना कर देती। वो काफ़ी लापरवाह थी, इसलिए हर चीज़ को लापरवाही में ही लेती थी। उसके नज़दीक ज़िंदगी सिर्फ यही थी, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या होता है वो नहीं जानती थी और ना ही उसने कभी जानने की कोशिश की थी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी सीधी सादी ज़िंदगी में एक दिन कुछ ऐसा होगा जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा और आने वाले वक्तों को उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बना देगा। बीबी जान ने घर में ऐलान किया कि दोनों की मंगनी की तकरीब रखी जाएगी।
उसके 3 महीने बाद शादी हो जाएगी। लेकिन सारिम ने 3 महीने बाद शादी का सुनकर गोया आसमान सर पर उठा लिया और कहा कि बिल्कुल नहीं, मंगनी के कुछ दिन बाद शादी होगी। मैंने बहुत साल इंतजार किया, अब और नहीं। उसके ऐसा कहने पर बीजान ने उससे कहा, थोड़ी तो शर्म कर लो। लेकिन वो भी आगे से ढीठ था। कहने लगा, नहीं बीबी जान, शर्म वरम मुझे नहीं आती, मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन शादी मंगनी के बाद हो जाएगी। मैं कोई इंतज़ार नहीं करने वाला, वरना भागकर शादी कर लूँगा। उसके जिद करने पर सब मान गए और सोचा कि शादी मंगनी के 1 हफ्ते बाद ही कर दी जाएगी। सारे फंक्शन साथ रखे गए। अपनी मंगनी की तकरीब में वो बहुत खूबसूरत तैयार हुई थी। सारिम तो बार बार उसकी तरफ झुककर उसकी तारीफें कर रहा था और वो चुपचाप मुस्कुराती जा रही थी। मंगनी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो वो ऊपर कमरे में चली आई। आने वाले वक्त को सोच कर ही उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो मुसलसल सारिम के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। वो हैरान हुई कि रात के इस पहर कौन है। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही उसकी पुप्पो की नवासी खड़ी थी। उसने उसके हाथ में कागज़ थमाया जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो पढ़कर फ़ौरन से मुस्कुरा उठी। साथ में छत पर आने का कहा था। वो समझी कि सारिम ने उसे इस वक्त छत पर बुला रहा होगा। वो फ़ौरन से उसी लिबास में उठी और उठकर ऊपर चली आई। सब लोग सो रहे थे। छत पर आकर देखा तो उसे सारिम कहीं नज़र नहीं आया। तभी उसे छत पर बने कमरे की लाइट जलती नजर आई। वैसे तो वो कमरा खाली रहता था। उसे लगा कि वो वहां पर होगा। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो किसी ने फौरन से पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। सारिम से उसे किसी भी ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो फौरन से परेशान हो गई। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने असगर खड़ा था। असगर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हैरत से उससे पूछ रही थी। असगर की आंखें सुर्ख हो रही थी और वो काफ़ी लड़खड़ा रहा था। यूं लग रहा था जैसे नशे में है। इसने आज से पहले तो असगर को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। उसे कुछ गलत होने का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ तो वो दरवाजे की तरफ भागी और कुंडी खोलकर निकलने की कोशिश की, लेकिन असगर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा कि कहाँ भाग रही हो, इतनी भी क्या जल्दी है। वो मुसलसल उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असगर उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसने अपने नाखून उसके बाजू पर मारे, रोते हुए उसकी मिन्नतें की और ज़ोर से चिल्लाते हुए सारिम को आवाज़ देने लगी, लेकिन असगर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उस पर झुक गया। वो रोती रही, तड़पती रही, लेकिन उसने इसकी इज्जत को ख़राब कर दिया। ये भी ना सोचा कि वो उसके भाई की होने वाली बीवी है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से बाहर निकल गया। पीछे शानजे रोते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। बमुश्किल वो नीचे कमरे में आई। उस वक्त सब सो रहे थे, इसीलिए किसी को पता ही ना चला। उसे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि काश वो ऊपर ना जाती। अपने कमरे में वॉशरूम में बंद होकर रोए जा रही थी। अगली सुबह से बहुत ही तेज़ बुखार था। सब लोग बहुत परेशान हो गए और सारिम भी उसके सरहाने बैठा परेशानी से उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपा ली। शादी के सारे फंक्शन में उसकी हालत बहुत ख़राब रही। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने फ़ौरन से शहर जाने की ज़िद कर दी और सारिम से कहा कि मुझे शहर में जाकर रहना है। उसकी ज़िद पर वो उसे शहर ले आया और वहीं पर उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन इतने सालों में जब भी वो उसे हवेली जाने को कहता तो वो मना कर देती। और अब जब उसने बीबी जान को ये सब बताया तो उसके ऊपर से बोझ सा उतर गया। सारिम के साथ उसने अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर दी। दूसरी तरफ बीबी जान असगर के आने का इंतज़ार करने लगी। सारिम लोग यहाँ से गए तो असगर वापस आया। उसे पता नहीं था कि वो लोग यहाँ पर आए थे। बीबी जान ने उसे कमरे में बुलाया और उससे सारी बात कही और कहा कि आज मुझे तुम्हारे पैदा होने पर शर्म आ रही है। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारी छोटी बहनों की तरह थी, तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी। तुम्हारी अपनी बीवी भी तो थी, कुछ तो सोच लेते उस वक्त।
وہ نہیں جانتی تھی کہ اصغر کی بیوی دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے اسی دن گھر چھوڑ دیا اور اصغر سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ بی بی جان نے اصغر کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔